Welcome students. Today we are going to do lesson 3, The Passing Away of Bapu by Nayantara Sehgal from your textbook Bliss. Okay. So now who is Bapu? We all know that who is Bapu? Bapuji, our national father, Mahatma Gandhi. So you see the title, The Passing Away of Bapu, that means the death. What happened after the death, immediately, how the people felt after his immediately after his death. ওনার মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওনার কাছের লোকজনরা বা দেশবাসীরা কি ফিল করছিল বা করেছিল সেই মুহূর্তে সেই সময়ে, তো দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর গোয়িং টু রিড. And this has been written by Nayantara Sehgal. So let us see who is she. Nayantara Sehgal, she is born in 1927 and is one of the first female Indian writers in English to receive wide recognition. So she is one of the first female Indian writers जो इंग्लिश में लिखती हैं, जो इंग्लिश में लिखे, एंड शी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वन हु रिसीव्ड अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन. बहुत उनको मान्यता मिला, उनार नाम अनेकटाई हয়েছিল. Her fiction deals with India's response to the crisis brought about by political changes, and whatever she writes, that main theme টা কি হয়, কি নিয়ে ডিল করে ওনার লেখা না, ইন্ডিয়ার রেসপন্স যেটা মানে টু দ্য ক্রাইসিস, মানে যেটা পলিটিক্যাল চেঞ্জ হলো after the independence and maybe after the death of Bapuji and all. तो ये जो political changes गुलो होलो, ये सारे जो political changes आए इंडिया में, जो इंडिया ने तब फेस किए immediately after independence and then the death of Mahatma Gandhi, तो इन सब चीज़ों को लेके ही उनका लिखाई है. She won the Sahitya Academy Award in 1986 for her novel Rich Like Us. ओके तो ये नॉवेल के लिए उनको ये अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको मिला था 1986 में. और ये देखो क्या, ये कहाँ से लिया गया है जो तुम लोग अभी पढ़ने जा रही हो. द टेक्स्ट एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नयनतारा सहगल्स मेमोयर प्रिजन एंड चॉकलेट केक रिकाउंट्स द इंसिडेंट्स फॉलोइंग द डेथ ऑफ गांधी जी. तो ওনার লেখা একটা মেমোয়ার যার নাম হচ্ছে প্রিজন অ্যান্ড চকলেট কেক, তার ভেতর থেকে এই এক্সট্র্যাক্টটা নেওয়া হয়েছে. এবং দেখো এখানে পরিষ্কার লিখছে যে গান্ধীজির মৃত্যুর পরপরই কি হয়েছিল. तो उनके लिखे गए एक मेमोयर जिसका नाम है प्रिजन एंड चॉकलेट केक, जिसमें से ये वाला लिखा गया, ये लिया गया है जो तुम लोग अभी पढ़ने जा रही हो. ये एक्सट्रैक्ट वहीं से लिया गया है. और यहाँ पे देखो ये लिखा गया है कि ये दिखाता है इसमें कि गांधी जी के मृत्यु के तुरंत बाद क्या क्या हुआ था. इट विविडली डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द ऑथर्स पर्सनल सेंस ऑफ लॉस बट ऑल्सो द कलेक्टिव ग्रीफ ऑफ द एंटायर नेशन एट द पासिंग अवे ऑफ महात्मा गांधी. और ये जो दिखाता है नॉट ओनली हर ओन फीलिंग, उनको अकेला कैसा लगा, उनार एकलार किरम दुख হয়েছিল সেটা না, नेशन एज अ होल की फील করেছিল, इंडिया एज अ होल क्या फील किया था महात्मा गांधी जी के मृत्यु के बाद, कितना दुख हुआ था, কতটা দুঃখ পেয়েছিল সবাই, সেটাও এখানে দেখা যায়. আচ্ছা তো চলো let us begin unit 1. I was having tea at home on the evening of 30th January 1948 when I was called to Birla House by an urgent telephone. Gandhi ji had been shot on his way to a prayer meeting. I was numb with shock as I got into the car. So देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेखिका कह रही हैं कि वो चाय ले रही थी 30 जनवरी 1948 को. हम लोग सब जानते हैं कि 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था. और कब आज़ाद हुआ था? अगस्त में. लेकिन उसके बाद देखो थोड़ा ही दिनों बाद जनवरी आया 48 का, और उसके 30 जनवरी को देखो ये घटना घट गई कि गांधी जी को गोली किया गया जब वो एक प्रेयर मीटिंग में जाने वाले थे. और ये तब चाय पी रही थी जब उनको ये बिरला हाउस में बुलाया गया अर्जेंटली. और ये कह रही हैं कि ये जो है शॉक से, ट्रॉमा से नम हो गई थी. कोई मतलब उनको कुछ मतलब नम हो जाना मतलब कोई अनुभूतिहीन कुछ मतलब हो नहीं रहा था उनको.
হ্যাঁ, তো মানে লেখিকা বলছেন যে উনি 30 জানুয়ারি 1948 উনি ওনার বাড়িতে চা খাচ্ছিলেন, সেই সময় ওনাকে বিড়লা হাউসে একটা আর্জেন্ট টেলিফোন করে ডাকা হয় এবং গান্ধীজিকে গুলি করা হয়েছে সেটা মানে উনি প্রেয়ার মিটিংয়ে যাচ্ছিলেন সেটা বলা হয়। অ্যান্ড শি বিকেম নাম্ব, মানে ওনার ঠিক সেরকমভাবে আর কোনো সেন্স কাজ করছিল না when she got into the car. At the Birla house, Gandhiji's relatives and followers had gathered round his body. There was silence in the room as Gandhiji breathed his last. Birla house গান্ধীজির রিলেটিভ ফলোয়ার্স মোটামুটি অনেকেই ওই সময় মানে ওখানে ছিলেন ভিড় করে সব, কিন্তু সবাই চুপ ছিলেন এবং গান্ধীজি সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ওয়ার্ডস অফ বাপুজি's ডেথ হ্যাড স্প্রেড থ্রু দিল্লি লাইক আ ফ্লেম ফ্যান্ড বাই উইন্ড। নাও ইউ সি, अच्छा मैं बोलती तो बापू जी के मृत्यु का खबर जो है पूरे दिल्ली में जैसे एक आग फैलता है ना, हवा जितना देगा आग उतना फैलेगा, तो उसी तरह से जैसे आग की तरह फैल गया। तो देखो बिरला हाउस में गांधी जी के सारे रिलेटिव्स वगैरह सब थे, फॉलोअर्स थे और वो लोग सब जो इकट्ठे हुए थे, लेकिन सब चुप थे और गांधी जी का डेथ वहीं हुआ। और गांधी जी का ये जो डेथ का न्यूज़ है वो एक आग की तरह फैल गया। गांधीजीर मृत्युर खबरटा पुरो दिल्लीते आगुनेर मतो छड़िए गेल। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि तब जो है मोबाइल फ़ोन नहीं था, काफ़ी हद तक मतलब जो हम लोग का लैंडलाइन कहते हैं वो भी अधिकतर नहीं था, लेकिन फिर भी एक खबर जब आग की तरह फैलती है मतलब वो कितना इम्पोर्टेंट और कितना मतलब महत्वपूर्ण न्यूज़ होता है कि उसको ये इस तरह से वो फैल गया। ठीक है। सैड ग्रुप्स ऑफ मेन एंड वीमेन हैड कलेक्टेड अराउंड बिरला हाउस. आउट ऑफ एवरी विंडो वन कुड सी अ ब्राउन ब्लर ऑफ फेसेस. दे डिड नॉट मेक अ साउंड. देयर वॉज एन अननेचुरल साइलेंस. इट वॉज एज इफ टाइम स्टूड स्टिल फॉर दोज फ्यू मिनट्स. तो जब ये खबर फैली तो बहुत सारे दुखी मेन वीमेन सब आए, बिरला हाउस में इकट्ठे हुए और हर एक विंडो से किसी का अलग सा चेहरा नहीं दिख रहा था, खाली एक ब्राउन सा मतलब फेसेस दिख रहा था। इतना भीड़ हो गया था लेकिन एक भी आवाज़ नहीं था, सब चुप थे। एक अननेचुरल साइलेंस था, ये नेचुरल नहीं था, ये कोई मतलब अननेचुरल था जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। और जैसे ऐसा लगा कि उन कुछ लम्हों के लिए जो है वक्त रुक गया था। तो ওনার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর অনেক দুঃখিত মেন উইমেনরা এসে বিড়লা হাউসে জড়ো হয়েছিলেন এবং প্রত্যেকটা উইন্ডো থেকে আলাদা করে কাউকে মানে বোঝা না গেলেও মানে একটা ভিড় যে দাঁড়িয়ে আছে, প্রচুর মুখ, প্রচুর লোক এবং মানে কেউ কোনো শব্দ করছিল না, সবাই একদম চুপ ছিল। আর এই চুপ্পিটা কিন্তু একটা আনন্যাচারাল সাইলেন্স ছিল, এটার মধ্যে কোনো ন্যাচারাল ব্যাপার ছিল না, একটা আনক্যানি টাইপের একটা জিনিস ছিল, আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। অ্যান্ড মানে এমন মনে হচ্ছিল যে ওই কিছু মুহূর্তের জন্য সময় থেমে গেছে। দ্য পিপল ওয়ার টু স্টান टू स्पीक इन द बिगिनिंग. इंसान मतलब तब के जो लोग थे वहाँ पर वो लोग इतने चकित हो गए थे कि बोल ही नहीं पा रहे थे. सॉरी. लेटर दे क्लैमर्ड वाइल्डली शाउटिंग एंड क्राइंग. लेकिन ये पहला मतलब ट्रॉमा का वक्त जब गुजर गया तो सब एक साथ यू देखो क्लैमर्ड डिमांडेड लाउडली, माने चिल्लाने लगे एकदम वाइल्डली, जंगली तरह से चीखने लगे, रोने लगे क्योंकि वो ये खबर को ले नहीं पा रहे थे। দে কুডন্ট ডাইজেস্ট দ্য নিউজ. প্রথমে তো মানুষরা প্রচণ্ড হতচকিত হয়ে গেছিলো এতটাই যে তারা কথা বলতে পারছিল না, কিন্তু এই কিছু মুহূর্ত চলে যাওয়ার পর যখন এই খবরটা মানে ফিল হলো যে হ্যাঁ এটা সত্যি কথা, মানে মানুষটা নেই, তো তারা প্রচণ্ড জোরে চিৎকার চেঁচামেচি কান্না করতে লাগলো। কেননা এটা এই খবরটা ওনারা নিতে পারছিলেন না যে এরকম একটা খবর কি করে হতে পারে। They jostled one another in a stampede to break into the house. They calmed a little when it was announced that they would be allowed to see Gandhiji before the funeral. এবং সবাই ঠেলাঠেলি করতে লাগলো, ভিড়ে যেরম হয় ধাক্কাধাক্কি করতে লাগলো এবং স্ট্যাম্পেড হয়ে যেতে লাগলো। মানে এত লোক ঢুকতে চাইছিল বিড়লা হাউসে যে স্ট্যাম্পেড মানে ধরো কেউ পড়ে গেলে তাকে ওঠার সময় না দিয়ে, সুযোগ না দিয়ে লোকে তাকে
মানে তার ওপর দিয়ে আর কি তাকে চ্যাপটা করে দিয়ে বেরিয়ে যায়। তো সেই জায়গাটায় অবধি পৌঁছে গেল। কিন্তু তারপরে যাই হোক তারা একটু শান্ত হলো যখন বলা হলো যে না, তাদের সবাইকেই গাंधी जी के देखते দেয়া হবে फ्यूनरलेर आगे। तो इंसान लोग बहुत भीड़ हो गई थी और सब मतलब भीड़ में सब एक के साथ दूसरे मतलब धक्का मुक्की करने लगे, स्टैम्पेड होने लगे। स्टैम्पेड यानी कोई आदमी गिर जाता है तो उसको उठने का मौका नहीं दिया जाता है, उसके ऊपर से उसको रौंद के जो है दूसरे लोग चले जाते हैं। इतना भीड़ हो गया था, लेकिन उनको उनको शांत किया गया ये बोलकर कि ये अनाउंस किया गया कि गांधी जी को सबको देखने को मिलेंगे फ्यूनरल के पहले। When one is faced with a shock of a loved one's death, one whimpers, "What will become of me now that he has left me?" যখন কারুর খুব নিকটবর্তী এবং প্রচণ্ড ভালোবাসার কারুর মৃত্যুর খবর কাউকে দেওয়া হয়, তো সব থেকে আগে যেটা মানে মানুষজন কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করে যে এবার আমার কি হবে, এ তো মারা গেলেন ইনি, কিন্তু এরপর আমার কি হবে। जब कोई किसी को सबसे अपना कोई बहुत ही करीबी बहुत ही चहीते किसी के मृत्यु का खबर दिया जाता है, तो सब दबे हुए स्वर में यही पूछते हैं कि अब ये तो चल बसे, लेकिन मेरा क्या होगा। दिस वॉज श्योरली द क्वेश्चन अपरमोस्ट इन द माइंड ऑफ द मॉर्निंग पीपल। और यही सवाल, यही प्रश्नोत्ताई ये जो भी वहाँ पे दुखी लोग थे सबके मन में घूम रहा था। যতজন ওখানে জড়ো হয়েছিলেন মর্নিং মানে দুঃখ যারা ওখানে দুঃখিত মানুষজন যারা জড়ো হয়েছিলেন সবার মনে এই প্রশ্নটাই ছিল। দে লুক লাইক লস্ট চিলড্রেন অ্যান্ড ইউ নো গান্ধীজি ওয়াজ আ ফাদার ফিগার ফর মানে অল অফ দ্য মানে इंडियंस, ऑल द इंडियंस। ओके, सो एवरीबडी हु लिव्ड इन इंडिया, जो भी इंडिया में रहते थे उनके लिए गांधी जी एक फादर फिगर। तो इसीलिए इनके चल बसने के बाद सब कोई जो है लॉस्ट चिल्ड्रन की तरह लग रहे थे। लॉस्ट चिल्ड्रेन जो अनाथ हो चुके हैं, जिनके ऊपर से छत चला गया है, पापा का साया चला गया है। তাই জন্য সবাই অনাথ বাচ্চার মতন মানে হারিয়ে যাওয়া, অনাথ বলবো না, अनाथ नहीं लेकिन लॉस्ट, गुम हो गया है, पापा नहीं मिल रहे हैं, अचानक एक टक से अकेला हो गए हैं। तो এরকম অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। ইট ওয়াজ দ্য क्वेश्चन ऑफ इन मेनी ऑफ आवर हार्ट्स एज वी सैट स्टिल शॉक्ड एंड अनबिलीविंग। और यही क्वेश्चन था इन सब के मन में जो तब बैठे थे, शॉक में थे और बिलीव भी नहीं कर पा रहे थे। वी लिसन टू द ब्रॉडकास्ट टेलिंग द पीपल ऑफ इंडिया दैट देयर बापू वॉज नो मोर। और वहीं बैठे बैठे ওখানে বসে বসেই ওনারা খবরটা শুনলেন যে পুরো মানে ভারতবাসীকে তখন জানানো হচ্ছিল যে তাদের বাপুজি আর নেই। तो এখানে यूनिट 1 शेष होच्छे। আমরা একটুখানি एक्सरसाइज थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे टू a prayer meeting. The author came to know of Gandhiji's death by a phone call. Okay, telephone call. Number C, when one is faced with the shock of a loved one's death, one whimpers. Fill in the chart with information date on which Gandhiji was shot. देखो यहाँ पे है 30th January 1948। उसके बाद प्लेस वेयर गांधीजी ब्रेथ्ड हिज लास्ट, वहाँ पर भी देखो बिरला हाउस। ओके, नाउ यू सी इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ब्रॉडकास्ट। क्या इंफॉर्मेशन दिया गया था? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट क्या दिया गया था? To the people of India that their बापू was no more। इसके बाद वाला क्या एक्सरसाइज है? देखो, ट्रू फॉल्स सपोर्टिंग स्टेटमेंट। द ऑथर रिसीव्ड एन अर्जेंट टेलीफोन कॉल इन द मॉर्निंग। ये फॉल्स है क्योंकि देखो यहाँ पर सपोर्टिंग स्टेटमेंट आई वॉज हैविंग टी एट होम ऑन द इवनिंग of 30th January 1948। पीपल अटेम्प्टेड टू ब्रेक इनटू द बिरला हाउस, ये सही है, ट्रू है, क्योंकि देखो ये जो दे जॉसल्ड वन अनदर इन अ स्टैम्पेड टू ब्रेक इनटू द हाउस, ये वाला सपोर्टिंग स्टेटमेंट है। हाउस के बाद ब्रैकेट में लिख देना बिरला हाउस। द न्यूज ऑफ गांधीजीज डेथ डिड नॉट शॉक द पीपल, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ये जो है दे लुक लाइक लॉस्ट चिल्ड्रेन, ये वाला भी हो सकता है। यहाँ पर देखो ये रुको एक मिनट, ये जो है वी लिसन टू द नो ये जो इट वाज द क्वेश्चन इन मेनी ऑफ आवर हार्ट्स एज वी सेड स्टिल शॉक्ड
एंड अनबिलीविंग। ठीक है, तो ये वाला भी दे सकती हो। तो इस तरह से छोटे छोटे और भी 2-4 वाक्य हैं जहाँ से ये पता चलता है कि सबको जो है शॉक मिला था। तो यूनिट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि बहुत जल्द आएगा। तो प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लर्न व्हाट हैज़ बीन टॉट इन दिस वीडियो। इसको पढ़ो, एक्सरसाइजेस करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो। 50 लाइक्स का, बहुत ही छोटा 50 लाइक्स का एक मेरा एम है, प्लीज़ पूरा करने में हेल्प करो। और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को बोलो मेरे चैनल को। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।